Dear students, today we will see about inborn errors of metabolism. What do you understand by inborn errors? Inborn errors of metabolism. Metabolism, we know actually what it is, that whatever we are eating, it is being digested or not. Our activity, if the metabolism of we usually say, if the metabolism of our body is low, then we feel very fatigued, very tired. We have no active feeling for anything. So that is if there is any errors in metabolism which we usually see, the people will feel always sleepy, they'll be always very tired, they won't feel like doing anything, they won't be innovative. So that is because the body metabolism is sluggish, or it is very slow. Because of that we don't have that active feeling. So now what is inborn? Inborn means already congenitally it is present. So inborn errors of metabolism, what it is, that we'll see. So inborn errors of metabolism are genetic inherited disorders which we inherit from our parents, in which the body cannot properly turn food into energy. The body, there's a condition, single gene disorder it is, and it is usually because usually we have XX or XY. So two genes are there, two chromosomes are there. In this it will be single gene, only one will be there. So inborn error. So it are very rare genetic disorders in which the body cannot properly turn food, whatever food we are eating, it cannot be turned into energy. Actually food, when we eat in the mouth, we chew it, and when we chew it gets liquefied, because many enzymes are present in the mouth, which while you chew it gets liquefied, and then it goes into via the esophagus, it goes into the stomach, where there are many other enzymes, the trypsin, pepsin and all those things, which again through many process the food is digested and it gets absorbed. But in this condition the food won't be able to get digested and it's not converted into energy. These disorders are usually caused by defects in specific proteins that help break down parts of food. Because of some enzymes, because of the fault in some enzymes or lack of some enzymes in the body, when we take the food, when it reaches the stomach, that enzymes are not present there to do the further activity. So because of that it happens. So the majority are due to defects of single gene, because of एक single gene के कारण होता है. That code for enzyme, और वो जो कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, व्हाटएवर हम जो खाते हैं उस चीज़ को ऑक्सीडिफाई करके क्या है कि वो सर्टन प्रोडक्ट्स में चेंज करता है. तो मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स में क्या होता है, प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू, क्योंकि क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. अपन कुछ खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तो कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है, जितना चाहिए हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, और जो अब्जॉर्ब नहीं होता है दैट्स अब्जॉर्ब बाय द लिवर, एंड जो चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होता, जो एक्स्ट्रा है, वो क्या होता है, थ्रू स्टूल, थ्रू यूरिन बॉडी से निकल जाता है. तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है करके उनका बॉवल हैबिट्स में भी, उनका जो यूरिनेशन, उनका स्टूल पास, उसमें भी प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहेगा, ठीक से उनका स्टूल्स पास नहीं होगा. तो उसके कारण क्या होता है कि पूरे जो हम खा रहे हैं अब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण में देयर विल बी पूरा बॉडी से जो जितना एक्सेस एक्यूमुलेशन होता है, एक्सेस हमारा एक्यूमुलेशन होने के कारण क्या होता है, वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है. कुछ भी चीज़ें जो हमारी जितनी ज़रूरत है उसके ज़्यादा होने पे वो क्या करता है, वो पॉइजन का काम करता है, और वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है. तो इसलिए क्या है कि वो, क्योंकि वाया दैट एलिमिनेशन प्रोसेस, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एलिमिनेशन. एक दिन हम अगर स्टूल पास नहीं करते हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, तो एलिमिनेशन पार्ट इज, तो वो एलिमिनेशन के टाइम में क्या पूरा एक्स्ट्रा चीज़ें जो बॉडी को काम का नहीं है उतना बॉडी एब्जॉर्ब करता है, और जो काम का नहीं है वो वाया स्टूल, वाया यूरिन बाहर निकाल देता है. तो ये मेनली इस डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ड्यू टू द सब्सटेंसेस, क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है इन जो जमा होने के कारण और टॉक्सिसिटी कॉज करता है. और जितना
वहाँ पे जो एबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल कंपाउंड्स की एबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। और इनबॉर्न एरर्स को अपन यूजुअली रेफर बोलते क्या है, कंजेनिटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एक ब्रिटिश फिजिशियन ने इसको इनाम दिया था, जिसका नाम था आर्किबाल्ड गरोड। इन्होंने 1908 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। उन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम थियोरी दिया था इस चीज़ के लिए। तो उसमें क्या है कि सपोज़ एक हम फूड लेते हैं, ए तो ए से बी में कन्वर्ट होना है, बी से सी में कन्वर्ट होना है, लेकिन क्या होता है बी एंड ए से बी में होता है, लेकिन बी और सी के बीच में जो प्रोसेस होना है और प्रोसेस नहीं होने के कारण में क्या होता है वहाँ पे टॉक्सिसिटी होती है। वो है गरोड हाइपोथेसिस जो है। उसका क्लासिफिकेशन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दैट इज फर्स्ट इज डिस्टर्बेंस इन द सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। डिस्टर्बेंस इन सिंथेसिस, जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस रहता है। जैसे लाइसोसोमल डिसऑर्डर है। लाइसोसोमल डिसऑर्डर, लाइसोजाइम इज एन एंजाइम। वो क्या करता है, खुद के सेल्स को एनगल्फ करता है। जो सेल्स होता है खुद के सेल्स को क्या है कि वो खाता है। तो देयर में भी इमेच्योर सेल्स, जिसके कारण प्रॉपर काम नहीं होता। सेकेंड इज एक्यूट और क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, क्योंकि एक्सेसिव शुगर, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो पूरे ठीक से शुगर को मेटाबॉलाइज नहीं कर पाता, तो उनका क्या होता है कि शुगर इंटॉलरेंस होता है, उनको फिर शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन वगैरह देना पड़ता है। थायराइड पेशेंट्स हो गया, अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तब भी उनको कम करके लिए, तो हाइपोथायराइडिज्म में तो उनको सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है थायरोक्सिन का। यूरोसाइक्लिक डिफेक्ट्स, कई कंडीशंस किडनी कंडीशंस में यूरिया क्रिएटिनिन यूरिन से निकलता नहीं है, बॉडी में किडनी में एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण यूरोसाइक्लिक डिफेक्ट्स होता है, डायलिसिस वगैरह करना पड़ता है। तो दैट इज एक्यूट और क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन है। फिर तीसरा है एनर्जी डिफिशिएंसी डिसीजेस। एनर्जी डिफिशिएंसी क्योंकि फूड ठीक से कन्वर्ट नहीं होता जो चीज़ में होना, जिसके कारण एनर्जी डिफिशिएंसी डिसीज का। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस, mitochondrial diseases, fatty oxidation disease, these are the some of the examples. So 3 types of classification क्या है, disturbance in synthesis of complex molecules, then acute or chronic intoxication due to accumulation of toxic compounds, और तीसरा है energy deficiency disease। इसमें डायग्नोस्टिक मेथड्स क्या है। फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, स्किन एंड हेयर चेंजेस। स्किन और हेयर चेंजेस रहेगा। स्किन क्या रहेगा, एकदम हार्ड रहेगा, फटा फटा रहेगा। हेयर चेंजेस में बाल थिक हो जाते हैं, फटने लगते हैं, कैटरैक्ट होता है, हेपेटोमेगाली, लिवर एनलार्ज होता है। लिवर एनलार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली जॉन्डिस होता है। फिर अनएक्सप्लेन न्यूरोलॉजिकल साइन, नर्वस सिस्टम में ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोमा में चले जाते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ एम्बिग्यूस जेनिटेलिया, मीन्स वो मेल भी नहीं है, आधा मेल का पोर्शन रहेगा, आधा फीमेल का पोर्शन रहेगा, दैट इज एम्बिग्यूस जेनिटेलिया। देन ये फिजिकल एग्जामिनेशन में प्रेजेंट रहता है। देन है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में अपन क्या करते हैं, टोटल एंड डिफरेंशियल CBC करते हैं, जिसमें टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट करते हैं। ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम अमोनिया, लैक्टेट एंड पायरुवेट, लिवर एंजाइम्स, आर्टीरियल ब्लड गैस। तो लिवर एंजाइम से क्या पता चलेगा लिवर की फंक्शनिंग कैसी है। लैक्टेट और पायरुवेट उसको करते हैं, ब्लड शुगर करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, सीरम अमोनिया करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस करते हैं, जिसमें कि ब्लड एसिडिक है पता चलेगा, सैचुरेशन कैसा पता चलेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कैसा पता चलेगा। तो वो सब चीज़ें कि आर्टीरियल ब्लड कैसे पता चलेगा। फिर उसके अलावा ये ब्लड टेस्ट हो गया। फिर यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग में यूरिन का pH देखते हैं। देन यूरिन टेस्ट फॉर फेरिक क्लोराइड करते हैं। स्पॉट टेस्ट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ये यूरिन में करते हैं। देन इसका जनरल मैनेजमेंट क्या करना है, टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, स्टॉप फीडिंग। तो मेटाबोलाइट्स के किसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, तो उसके कारण क्या है कि उसको स्टॉप कर दो, जो भी दे रहा है स्टॉप कर दो। और स्टॉप करने के बाद में क्या करना, ऑब्टेन ब्लड एंड यूरिन सैंपल। ब्लड एंड यूरिन सैंपल को देना। फिर उसके बाद क्योंकि तुम भूखे तो नहीं रख सकते, इसी कारण उसको इंट्रावेनस फ्लूइड्स देना है।
इंट्रावेनस फ्लूइड्स इसलिए कि डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए, एसिडोसिस है तो उसको करेक्ट करने के लिए, एसिडोसिस अगर है तो सोडा बाइकार्ब डाल के IV फ्लूइड्स देंगे। देन कार्डियो रेस्पिरेटरी आरएस, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, ऑक्सीजन अगर सैचुरेशन कम है तो ऑक्सीजन देना है, अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर वेंटिलेट करके उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना पड़ेगा। सैचुरेशन कम है तो उसका ऑक्सीजनेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोवाइड कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट को देना है। देन स्टार्ट स्पेसिफिक थेरेपी, क्या उस कंडीशन में क्या है उसके हिसाब से उसकी स्पेसिफिक थेरेपी देनी है। देन इफ़ कंडीशन वर्सन स्टार्ट पेरिटोनियल डायलिसिस, अगर यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स डिस्टर्ब्ड है तो उस केस में पेरिटोनियल डायलिसिस करना है। पेरिटोनियल डायलिसिस मीन्स हीमोडायलिसिस मीन्स जहाँ अपन ब्लड से फिस्टुला बनाते हैं और ब्लड को मशीन में एक्सचेंज करते हैं। वो ब्लड पूरे मशीन में जाता है, देन वो क्लीन करके फिर से प्योर ब्लड डालते हैं और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स से उसको निकालते हैं, तो वो है हीमोडायलिसिस। सर्टेन कंडीशन में हीमोडायलिसिस करते हैं। पेरिटोनियल कंडीशन डायलिसिस जिसमें आप पेरिटोनियम में नीडल डाल के पेरिटोनियम में फ्लूइड दे के उसको एक वाई टाइप का कैथेटर होता है जो नीडल अपन पेट में लगाते हैं, उसका एक वाई टाइप ऑफ कैथेटर से, तो वाई में एक इंच IV फ्लूइड जाता है, दूसरे एंड से जो फ्लूइड अपन दिए हैं पेरिटोनियम में वो वापस नीचे एक बैग में कलेक्ट होता है। तो वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिससे कि क्या है कि एक्सेस जो भी टॉक्सिसिटी उसको रिमूव करते हैं। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। तो ये है सर्टन मैनेजमेंट जो अपन करते हैं। जैसे कि प्रोटीन का प्रॉब्लम है तो डाइट से प्रोटीन को अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दोगे तो क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है वो कंडीशन है। तो दिस आर अबाउट इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।